গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে মহাবিস্ফোৰণ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2000 কোটিৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছে গৌতম আদানী। গৌতম আদানীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু লগতে কৈছে যিমান পাৰে সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু তাৰ পাছতেই গৌতম আদানীক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তেনেহলে নানা তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে উদ্যোগপতি গৌতম আদানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। আমি সবিস্তাৰে এই বিতং খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ মহাবিস্ফোৰক অভিযোগ। ৰাহুল গান্ধীয়ে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰে জড়িত গৌতম আদানী। এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিয় গৌতম আদানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই? এতিয়ালৈকে গৌতম আদানী কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই গৌতম আদানী। ৰাহুল গান্ধীৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য আৰু আদানীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলিও অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু আদানীৰ হাতৰ মুঠিত থাকে বিজেপিৰ অৰ্থনৈতিক দিশ। বিজেপিৰ যি অৰ্থনৈতিক দিশ সেয়া গৌতম আদানীৰ হাতত থাকে আৰু যিমান পাৰে সিমান সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে গৌতম আদানী। ৰাহুল গান্ধী সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গৌতম আদানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ওলাই পৰিব সকলো তথ্য, বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমেৰিকান নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাই আদানীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা, এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছিল উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে আৰু গৌতম আদানীৰ লগতে ভতিজা সাগৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিষয়াক $265 মিলিয়ন উৎকোচ দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু আদানীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্কিন বিনিয়োগকাৰীৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। মাৰ্কিন বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ। ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈছে 2000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰে জড়িত আছে উদ্যোগপতি গৌতম আদানী আৰু গৌতম আদানীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এই দাবী কৰিছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যিমান পাৰে সোনকালে গৌতম আদানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু তেতিয়াই বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব। আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বা বিজেপি চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো গৌতম আদানীৰ হাতত আছে বুলিও অভিযোগ এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈছে কি কৈছে গৌতম আদানীক লৈ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক লৈও কি কৈছে ৰাহুল গান্ধী। আমাৰ মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছো। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है।
बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। राहुल जी, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं